We are going to start with the questions. So question number one, it is related to your Vikas Limited. So open your book and you can see the question. I am just going to read the initial information of the question. It is given that authorized capital is 4 lakh rupees in this capital. Authorized capital 4 lakh rupees at the rate of 10 each. And company is going to be issue. It is invite application. Company is going to be VITED invited application APPLICA TION application for company invite application for your 3 lakh shares. So 3 lakh share. You got the question? Iram, question मिल गया बेटा आपको? First question. So in this we have to draw this your balance sheet, extract of balance sheet. Obviously here I have drawn a first line that is of your particular PARTICULAR particular. Then after particular we will have a note number. Particular के बाद हमारे पास क्या आने वाला है? We will have here note number. So this will be of our note number, and after that your current year and previous year. It is my current year and last one will be of your previous year. So I am going to write here note number and OTE note number. We will write note number over here. Then your CURRENT current year, YEAR year, and then after we will have previous year, PREVIOUS previous, YEAR previous year. So particular, according to the format of a balance sheet, the first head, anyone can tell what is the first head here? That is of your, क्या होगा first head? क्या होना चाहिए बेटा? फर्स्ट हेड क्या होना चाहिए? इक्विटी एंड, हाँ बेटा बोला करो आप लोग. LIA योर BILITIES लाइबिलिटीज. तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हमारा सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स होता है. इसका फर्स्ट हेड के अंदर फर्स्ट सब हेड हमारे पास योर SHARE शेयर होल्डर, HOLDERS शेयर होल्डर, FUND फंड होता है. अब जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए बेटा उनको थोड़ा सा दिक्कत ये हो रही होगी कि दैट दे आर न्यू इन दिस format, so you have to go to the format which is printed in your book. It is clear? In this subhead, the first heading is your share capital, your SHARE share, CAPITAL capital, share capital we have gone. So whatever the working note we are going to do, the note number 1, we are going to start here. That is your note number. That is note 1. Note 1 we are going to do. Whatever the answer of this note 1, we will write over here. It is clear? So in this, first of all, we will write this note number 1. It is of your share head, share capital at SHARE share, CAPITAL capital we are going to calculate. So the first number is what? Authorized. So authorized capital is what? AUTHORISED. Authorized capital. Anyone can tell me what was authorized capital? Authorized कितनी थी कंपनी को? Authorized capital was of your 4 lakhs. Equity shares, your EQUITY equity share at the share, SHARE share of rupees 10 each, EACH. So it was of your 40 lakhs. It was of your 40 lakhs. Authorized money is to be collected 40 lakhs. इतना तो authorized था. How much company issued in the market? कंपनी ने कितने के एप्लीकेशन कॉल किए? ISSUED issued. कंपनी ने कितने के एप्लीकेशन बेटा कॉल करे? एनीवन कैन टेल मी? देख के बता दो क्वेश्चन में. कंपनी ने बाजार में 3 लाख शेयर इशू करे. EQUITY इक्विटी शेयर्स जो थे वो कंपनी ने बाजार में उतारे ऑफ रुपीज 10 ईच के हिसाब से, 10 EACA. इसका मतलब कंपनी उस वक्त कितना पैसा कलेक्ट करना चाह रही थी? That is of your 30 lakh rupees company wants to collect by the time. But how many applicants apply for the shares? कितने लोगों ने अप्लाई किया शेयर्स के लिए और पूरे पैसे दे दिए? That means subscribed. कितने लोगों ने लिया? Subscribed. SUBSCRIBED. Subscribed and fully paid. Subscribed and FULLY fully. Your PAID paid. Subscribed and fully paid. कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया
और पूरे पैसे दे दिए. सो यू कैन सी हियर इन द क्वेश्चन इट इज रिटन द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,80,000 शेयर्स एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड. तो लोगों ने 2,80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया और इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाई किया और इन्होंने सारे के सारे पैसे दे दिए. सो वॉट एवर द मनी वी हैव रिसीव्ड दैट इज ऑफ योर 28,000 कंपनी रिसीव्ड. तो कंपनी ने जब 28,000 रिसीव किया दैट मीन्स इस साल का शेयर कैपिटल, करंट ईयर का शेयर कैपिटल हो गया आपके पास 28 लाख रुपीज. सो दिस वाज द बैलेंस शीट. पहला हेड किया है. वंस अगेन आई वुड लाइक टू शो यू दैट वी आर हैविंग अ फॉर्मेट. देखिए फॉर्मेट हमारे पास था कंपनी का. यू सी हियर इन दिस फॉर्मेट, यू सी हियर फॉर्मेट में फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट हेड के अंदर सब हेड था शेयर कैपिटल. इन द आफ्टर दैट यू विल हैव अ रिजर्व एंड सरप्लस, देन योर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स. तो फर्स्ट हेड का फर्स्ट पार्ट आज हमने देखा कैसे होगा. देन वी विल सी योर रिजर्व एंड सरप्लस कैसे राइट करेंगे. देन वी विल हाउ वी विल राइट योर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट. तो हर एक सेट के लिए आपके पास नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3. हियर वी विल पुट द नोट नंबर्स. It is clear. Now second question we are going to start. So second question is your MN Limited. Second question आप अपने book में ढूंढ लीजिए MN Limited. Some of the book may have vary with this question. So in this, what the authorized capital? You have AUTHORRISED authorized capital, CAPITAL capital of rupees. How much? Anyone can tell me? Authorized capital कितना है? क्वेश्चन देखो बुक में बेटा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है ये 5 lakhs. Okay, so how much it authorized capital was of your rupees 5 lakh of rupees 10 each, EACH each. 5 lakhs authorized था और कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3 lakhs. सो INVITED इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3 lakh शेयर्स. यू गॉट द क्वेश्चन इन योर बुक? क्वेश्चन मिल गया बेटा? सर नो सर. So question number 2 very short answer type question is, I will show you if you are not going to get it. You see here in current year's book it is of your page number 158 पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. इट इज रिटन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट वाज ऑफ योर विकास एंड सेकंड क्वेश्चन वाज ऑफ योर MN लिमिटेड. सेकंड क्वेश्चन है आपका इट इज योर MN लिमिटेड. देख लीजिए. नाउ यू कैन गो टू द पेज नंबर 158. अच्छा, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर, देखो कुछ बच्चों. सो हियर फॉर्मेट वी वर हैविंग दैट फर्स्ट इज ऑफ योर EQUITY इक्विटी एंड लायबिलिटीज, LIA your BILITIES liabilities. इक्विटी एंड लायबिलिटीज में अब आप देखेंगे SHARE शेयर होल्डर्स, SHOLDERS शेयर होल्डर्स फंड, FUNDS शेयर होल्डर फंड्स हैं. ठीक है. इन दिस द फर्स्ट हेड वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. पहला वाला हेड हम देख रहे हैं दैट इज ऑफ योर शेयर CAPITAL कैपिटल. इसके लिए नोट नंबर 1 बनेगा. तो शेयर कैपिटल जो भी आएगा हम यहाँ पर लिख लेते हैं. अब नोट नंबर 1 जो है उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं. वी विल सी द कैलकुलेशन ऑफ नोट नंबर 1. नोट नंबर 1 का कैलकुलेशन देखेंगे आप. देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं शेयर कैपिटल हम कैलकुलेट करने वाले हैं. तो हियर SHARE शेयर कैपिटल, CAPITAL शेयर कैपिटल. नाउ योर AUTHORISED authorized capital, CAPITAL. authorized capital हमको हुआ था 5 लाख रुपीस का इक्विटी शेयर के हिसाब से. तो authorized capital मेरे पास था 5 लाख. मतलब कंपनी को इस बात का अधिकार था कि वो 5 लाख रुपए के शेयर बाजार में बेच दे. तो इक्विटी शेयर एट ₹10 ईच, EACH ईच. अगर 5 लाख रुपए के शेयर 10 रुपए के हिसाब से बेचेगी तो कंपनी के पास इक्विटी शेयर से पैसा इकट्ठा हो जाएगा 50 लाख रुपए. 50 लाख रुपए इकट्ठी हो जाएंगे. उसके बाद देखेंगे इशूड, ISSUED इशूड कैपिटल, CAPITAL इशूड कैपिटल कितना. कंपनी ने
उसको अधिकार था 5 लाख रुपए का, लेकिन उसने कंपनी ने बाजार में कितने शेयर बेचने के लिए उतारे, मतलब लेकर के बोला, अनाउंस किया कि वो 3 लाख रुपीस के शेयर्स जो है मार्केट में सोल्ड करना चाह रही है। कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से। 3 लाख इक्विटी शेयर ₹10 के हिसाब से वो बेचना चाह रही है, मतलब वो 30 लाख रुपीस इकट्ठा करना चाह रही है। पर बाजार में 3 लाख रुपए के शेयर लेके कंपनी उतरी है, तो जरूरी थोड़ी है 3 के 3 बिक जाएंगे। अब इसमें हुआ क्या, 27,000 शेयर, 2,70,000 शेयर तो पूरे बिक गए उसके। लेकिन एक बंदा ऐसा था जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने एक कॉल इन एरियर, मतलब एक शेयर का पैसा नहीं दिया, एक कॉल का पैसा नहीं दिया, और जो शेयर्स थे वो हमको बाद में कुछ शेयर्स फोरफुट करने का भी क्वेश्चन में दिया है। तो इसमें जो थर्ड हेड है ये इंपॉर्टेंट हेड है, देखिए आप, SUBSCRIBED, subscribed and fully, and your FULLY, fully paid capital, PAID, paid, CAPITAL, capital, subscribed and fully paid capital, सब्सक्राइब भी किया और पूरा पैसा दिया। तो ऐसे कितने लोग थे? ऐसे थे 2,70,000 शेयर होल्डर थे। शेयर होल्डर मतलब 2,70,000 के इक्विटी शेयर्स के पैसे हमें ऑफ ₹10 ईच के हिसाब से मिल गए। मतलब ये वाला अमाउंट तो हमारा फाइनल हो गया। 27 लाख रुपीस तो हमें एक बार में सारा का सारा मिल गया। 27 लाख रुपीस तो सारा का सारा मिल गया। अब हुआ क्या, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब किया, SUBSCRIBED, सब्सक्राइब्ड हुआ, बट मतलब उन्होंने सब्सक्रिप्शन तो कर लिया बट नॉट फुली पेड, लेकिन पूरे पैसे दे नहीं पाए। FULLY, फुली, PAID, पेड कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल। सब्सक्राइब तो किया लेकिन फुली पेड नहीं कर पाए, मतलब थोड़ा पैसा दे दिया और थोड़ा नहीं दे पाए। ऐसे 1000 शेयर ऐसे थे, शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिनके पास इक्विटी शेयर 10 रुपीज के हिसाब से जाने थे, लेकिन वो कुछ पैसा नहीं दे पाए। जो नहीं दे पाए उसको हम लोग देख लेते हैं। आई हैव एडेड अनदर पेपर शीट हियर सो दैट यू कैन इजीली सी हियर। सो दैट वाज ऑफ योर, इसमें हुआ क्या था, 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, EACH, 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, मतलब हमको इतने पैसे रिसीव होने थे, लेकिन इस 1000 वाले में से हमको जो पैसा नहीं रिसीव हुआ, कॉल इन एरियर्स, कॉल इन ARREARS, जो पैसा नहीं रिसीव हुआ वो माइनस कर देंगे। कितना पैसा नहीं रिसीव हुआ था इसमें से? हमें 3 रुपए का पैसा नहीं रिसीव हुआ था। 1000 रुपए पर इंटू 3, बिकॉज क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं यहाँ पर लास्ट में। क्वेश्चन में वो बता रहा है आपको दैट 5000 ऐसे शेयर थे जिनका पैसा 3 रुपए के हिसाब से रिसीव नहीं हुआ था, जिसमें से 4000 शेयर जो थे फाइनल कॉल्ड नॉट रिसीव्ड वर फॉरफिटेड। 4000, इसका मतलब 4000 फाइनल कॉल्स और 5000 जो थे वो एक्सेप्ट 2,75,000 में से थे। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 1000 रुपए का आ रहा है। तो 3000 रुपए ऐसे थे जो हमें नहीं मिले। तो हमें मिले कितने? हमको मिल गए 7,000 रुपीज इस वाले में। और जो अब हमको इसमें ऐड करना है, जो 4000 रुपए फोरफिट किए गए, हमारे 4000 रुपीज हमारे फोरफिट कर दिए गए। तो शेयर फोरफिटेड का अमाउंट SHARE, शेयर, FORFEITED, फोरफिटेड अकाउंट में हमारे पास आ गए 28,000 रुपीज। See here, the addition of this and this and this, we will get, all the addition is 27,35,000 rupees का total addition हुआ। तो this amount we will write in our answer, 27,035. It is your 27,35,000 rupees का। This was the question number 2, कैसे कैलकुलेट हुआ। Now one more thing I would like to tell you. It is the initial part of the question. If something is going to be going out of your that misunderstanding, make me a personal messages so that I can be paid share, subscribed हुए और fully paid हुए, PAID, paid। ऐसा कोई भी शेयर नहीं था कि वो सब्सक्रिप्शन के बाद फुल्ली पेड हो गया, ऐसा कोई भी शेयर नहीं था।
कि किसी जैसे मान लेते हैं 50,000 लोगों ने पूरे पैसे दे दिए तो हम यहाँ लिख देते 5 लाख रुपए आ गए, लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं था। तो फिर कैसे बंदे थे? ऐसे लोग थे जिन्होंने सब्सक्राइब तो किया, मतलब हमारे शेयर्स को लेने के लिए इच्छा तो जताई, बट नॉट फुल्ली पेड, FULLY फुल्ली, PAID पेड कैपिटल, CAPITAL। अब क्या हुआ? सब्सक्राइब कर लिया। तो ऐसे 4,50,000 लोग जो थे, देखो नॉट फुल्ली पेड में। अब हमारे पास क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन है, आई वुड लाइक टू रीड इट। यहाँ पे लिखा है कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग ईयर। कंपनी ने पूरा कॉल नहीं किया। तो कंपनी ने कितने रुपए के लिए आपको बोला? एप्लीकेशन के 3 रुपए और अलॉटमेंट के 4 रुपए, तो टोटल 7 रुपए। तो 7 रुपए का पहला पैसा जो हमको आना चाहिए था, तो 4,50,000 के इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 EACH होते थे 10 के, लेकिन कंपनी ने क्या किया? 7 कॉल्ड अप किया। ध्यान से देखो यहाँ पर ₹7 CALLED कॉल्ड अप। ₹7 कॉल्ड अप का मतलब ये है 4,50,000 के 10 रुपए के हिसाब से शेयर का पैसा इकट्ठा होना था, लेकिन कंपनी ने क्या किया? सिर्फ एप्लीकेशन का 3 रुपए मांगा और फिर अलॉटमेंट का 4 रुपए मांगा, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा ही नहीं। इसका मतलब कंपनी ने सिर्फ 7 रुपए मांगे, तो 4,50,000 के 7 रुपए 7 रुपीज के हिसाब से पैसा कलेक्ट होगा। तो ये पैसा हमारे पास होगा 31 लाख रुपीज, 31,50,000 रुपीज कलेक्ट हो गया। अब ऐसे कौन से शेयर थे जिनका पैसा नहीं मिला? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 2,000 शेयर। अलॉटमेंट का 2,000 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो यहां पर लिख लीजिए लेस। जो पैसा नहीं मिला उसको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या था? कॉल इन एरियर्स। जो पैसा नहीं मिलता उसको बोलते हैं कॉल इन, ARREARS। कॉल इन एरियर्स हुआ कितने शेयर के ऊपर? 2,000 शेयर्स के ऊपर। और कितने रुपीस के हिसाब से? ₹4 EACH। 2,000 रुपए के हिसाब से 4 रुपए का पैसा नहीं मिला, मतलब अलॉटमेंट वाला 4 रुपए नहीं मिला। तो कितने रुपए नहीं मिले? 8,000 रुपीज वी हैव नॉट रिसीव्ड। 8,000 रुपीज नॉट रिसीव्ड हुए। तो जब 8,000 नॉट रिसीव्ड हुए तो हमारे को एक्चुअल रिसीव कितना हुआ? 31 लाख रुपीज, 31,42,000 रुपीज एक्चुअल रिसीव हुआ। तो ये जो एक्चुअल रिसीव हुआ 31,42,000, इट इज आवर आंसर फिगर। So we will write it here 31,42,000 रुपीज। इट इज क्लियर? इतना रिसीव हुआ हमारे